लेकिन पास करो. Good morning, student. We have discussed about relational algebra in earlier classes. Today, it's my first video about your DBMS topic regarding relational calculus. We have discussed relational algebra and relational calculus. These are different way of expression the queries in the form of procedural and non-procedural language. Relational calculus is what? Relational calculus is a non-procedural language, right? That means what? Relational calculus are queries expressed in the form of formula. There is a number of variables and expression involving these variables. It is up to DBMS to transform these non-procedural query into equivalent, efficient and procedural query form. Relational calculus is used to measure selective power of relational languages. That means if you have given a query, you can express the individual query in the form of non-procedural statement that is denoted by different types of variables. How it works? Basically, relational calculus are two types of. First is tuple oriented and second is domain oriented relational calculus. Here tuple means what? I have earlier discussed tuple means row and domain that is indicated for the column. Suppose you have given a table and a table consists of different of elements or different type of columns. If you are assigning the value of primary key that is in the form of integer or number type of data, then what is the value consist of primary key having domain is what? That is numeric value. Suppose you have entered the name of a student. The name of a student is variable character. The variable character is again the type of string, that is the domain of particular entry is string. Now I have sent a PPT related to relational calculus. We will proceed on the PPT. Let's come to the PPT sites. That's it. Here we have seen relational calculus. Here we have seen relational calculus. I already discussed the relational calculus is two type: tuple relational calculus and domain relational calculus. Next, first of all, relational calculus expression create a new relation which is specified in terms of variable. The ranges over tuple or row store database relation, that is tuple calculus, and the over column is called as domain calculus. दैट मीन्स अगर आपके पास कोई भी एंट्री है वो अगर रो के फॉर्म में इंडिकेट हो रही है तो वो आपका टपल रिलेशन काउंट होगा, और अगर आप कॉलम स्पेसिफिक उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो आपका डोमेन कैलकुलस काउंट होगा. सपोज रिलेशनल कैलकुलस डेफिनेशन अगेन, देयर इज नो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू स्पेसिफाई हाउ टू रिट्रीव द क्वेरी. दैट मीन्स व्हाट कि आपने जब रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी प्रोसेस की थी तो आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर था कि सबसे पहले आप क्वेरी को यूज़ करोगे, उसके बाद आप पाई एंड सिग्मा फॉर्म के अंदर उसको एक्सप्लेन करोगे. बट यहाँ पे अपने पास किसी भी तरह का कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं होता है. तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कैलकुलस एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड ओनली व्हाट इन्फॉर्मेशन द रिजल्ट शुड कंटेन. आपको क्या इन्फॉर्मेशन है वो रिजल्ट के अंदर चाहिए, उसी के हिसाब से अपन कैलकुलस एक्सप्रेशन को स्पेसिफाई करेंगे. दिस इज द मेन डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस. The main theme is what? A calculus expression specify only what information the result should contain. Relational calculus is considered to be a non-procedural language. जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा. वी हैव मस्ट राइट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू स्पेसिफाई द रिट्रीवल रिक्वेस्ट. Hence, the relational algebra can be considered the procedural and relational calculus is as a non-procedural. Now, tuple relation calculus is what? A tuple relation calculus is based on the specify the number of tuple variables. That means अगर आपके पास कोई भी टेबल दे रखी है और उस टेबल की क्वेरी के हिसाब से अगर कोई वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होगी तो वो रो की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा. तो यहाँ पे टपल रिलेशन कैलकुलस क्या स्पेसिफाई करेगा? टपल वेरिएबल्स, जिसका मतलब ये है ईच टपल वेरिएबल यूजुअली रेंज ओवर अ पर्टिकुलर डेटाबेस रिलेशन, मीनिंग दैट वेरिएबल में टेक एज इट्स वैल्यू any individual tuple from that relation or it may be consist of different types of formula. A simple relation calculus query is the form of, आप लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर डिफाइन किया था. जैसे अपन किसी भी सेट एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं या रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं,
you are discussing in DMS consist topic in relation. रिलेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, रिलेशन के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को एक्सप्रेस करोगे और उसकी कंडीशन क्या होती है उस हिसाब से उसको जस्टिफाई करते हो। तो यहाँ पे भी जो टपल रिलेशन कैलकुलस होगा उसका मेन फॉर्मूला होता है वेरिएबल नेम एंड कंडीशन ओवर दैट वेरिएबल, वेयर टी इज़ द टपल वेरिएबल एंड कंडीशन T is a conditional expression involving T. The result of a such query is the set of all tuple T that satisfy condition T. इसका मतलब यही है कि जो आप वेरिएबल T यूज़ कर रहे हो उसकी जो कंडीशन होगी वो सारी की सारी कंडीशन रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करेगी। सपोज टपल रिलेशन कैलकुलस का जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, द बेस्ट एग्जांपल इज़ यहाँ पे अपने पास एक क्वेरी दे रखी है टू फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज़ अबोव $50,000. We can write the following tuple calculation expression. For example, I have given a table employee. Here employee is a table and T is the variable. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इस T वेरिएबल को मैं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो कंडीशन क्या कहती है कि पहली चीज़ तो जो एट्रीब्यूट है उस टेबल के अंदर एग्जिस्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने सैलरी को चेक किया, सैलरी इज़ मोर देन, तो सैलरी का ग्रेटर देन रिलेशन ऑपरेटर यूज़ होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 50,000। तो यहाँ पे जो बार ऑपरेटर है, दिस बार ऑपरेटर सेपरेट्स द वेरिएबल नेम दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट एंड द कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज सेपरेटर हियर। द टी डॉट एफ नेम कॉमा टी डॉट लास्ट नेम employee T and T dot salary greater than 50,000. तो here we are associate the variable with the column name और attribute। आपको जो भी रिटर्न करना है वो आप क्या करोगे उसके साथ एसोसिएट करोगे। द कंडीशन एम्प्लॉय T स्पेसिफाई दैट द रेंज रिलेशन ऑफ टपल वेरिएबल T इज एम्प्लॉय। द फर्स्ट एंड लास्ट नेम हियर, जैसे मेरे को अगर प्रोजेक्शन के हिसाब से उसको जस्टिफाई करना होता था तो आप प्रोजेक्शन क्या करता था, प्रोजेक्शन विल ओनली यूज इन रिलेशनल अलजेब्रा एंड इंडिकेटेड बाय द पाई ऑपरेटर, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय, ठीक है। और अगर मेरे को सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन के लिए अपन सिग्मा यूज़ करते थे, तो कंडीशन क्या होती थी, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000। तो ये तो आपका एक प्रोसीजरल फॉर्म हो गया रिलेशनल अलजेब्रा के टर्म्स में। बट अगर मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ रिलेशनल कैलकुलस की फॉर्म में, तो रिलेशनल कैलकुलस क्या करेगा, सिंपल एट्रीब्यूट का नेम आएगा, जो एट्रीब्यूट रिटर्न करवाना है उसके साथ में आप एसोसिएट करोगे वेरिएबल के नेम को, बार ऑपरेटर के साथ आप कंडीशन मेंशन कर दोगे जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द जनरल रूल? जनरल रूल क्या कहता है, दिस इज द मेन जनरल एक्सप्रेशन हियर, T1 डॉट AJ TN डॉट AM, यहाँ पे जो T1 T2 एंड TN यूज़ कर रहे हो वो सारे आपके वेरिएबल हैं, और जो AJ टू AM दे रखे हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट नेम दे रखे हैं। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा कि सिंपल एक ही आपके पास वेरिएबल दे रखा है, तो T वेरिएबल आपने दोनों साइड यूज़ किया है, और जो आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दे रखे थे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट F नेम, लास्ट नेम और सैलरी है। नाउ कंडीशन, व्हाट इज़ द कंडीशन? कंडीशन में बी एवरी एटम इज़ अ फॉर्मूला, ठीक है। कंडीशन एक फॉर्मूला हो सकती है, कंडीशन एक एटम हो सकता है, कंडीशन है वो फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इट सेल्फ इज़ अ फॉर्मूला। सपोज इफ़ F1 एंड F2 आर फॉर्मूला, तो F1 एंड F2, अगर मैं F1 और F2 का एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ, दैट मीन्स फॉर्मूला 1 शुड बी सेटिस्फाइड, फॉर्मूला 2 मस्ट बी सेटिस्फाइड, देन द रिजल्ट फॉर्मूला वुड बी सेटिस्फाइड। तो F1 और F2 and not of F1, not of F2 also formula. Now we have discussed about existential and universal quantifier. What is the mean of quantifier? क्वांटिफायर का मतलब जनरली यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को बाउंड कर रहे हो, ठीक है, मतलब ये रिज़ल्ट रिटर्न करेगा ही करेगा। आपके पास अगर कोई क्वेरी दे रखी है और अगर वो क्वेरी है वो रिज़ल्ट को रिटर्न नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। बट अगर आपके पास कोई भी चीज़ दे रखी है और वो एटलीस्ट एक भी रो उसके लिए अगर रिटर्न हो रही है, इसका मतलब यही है कि उसकी किसी भी पर्टिकुलर टपल्स के लिए वो वैल्यू कंसिस्ट करेगा, रिटर्न करेगा। तो 2 स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं क्वांटिफायर के लिए। पहला होता है आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर, that is denoted by for all symbol,
and second is existential quantifier, that is the form of reverse of E. Next, informally a tuple variable t is bound if it is quantified, meaning that it appears in for all t or existence of t clause, otherwise it is free. इसका मतलब यही है कि अगर आप एक टपल वेरिएबल t को बाउंड कर रहे हो तो वो क्वांटिफाइड तभी होगा जब मैं उसको या तो किसी यूनिवर्सल क्वांटिफायर या फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की फॉर्म में उसको जस्टिफाई करूं। तो वो जो क्लॉज होगा वो मैं फॉर ऑल टी और एग्जिस्टेंस ऑफ टी क्लॉज में जस्टिफाई करता हूँ। अगर इसमें नहीं कर पा रहा हूँ तो वो क्या होगा, इट इज़ फ्री। इफ़ एफ इज़ अ फॉर्मूला देन एग्जिस्टेंस ऑफ टी एफ, देखो इसको लिखने का तरीका इस तरह से अपन लिखेंगे इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ टी ऑफ एफ वेयर टी इज द टपल वेरिएबल एंड फॉर्मूला existence of tf is true if the formula f equates to true for some for some at least one। दैट मीन्स अगर मैं एग्जिस्टेंस को यूज़ कर रहा हूँ तो वो ट्रू कब होगा, जब कोई ना कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा, कम से कम एटलीस्ट वन टपल असाइन टू फ्री अकरेंस ऑफ टी इन एफ, अदरवाइज एग्जिस्टेंस ऑफ टी एफ इज़ फॉल्स। ठीक है, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेरी के अंदर देखा था, ये वाली क्वेरी जिसमें ऐसे एम्प्लॉय जिसकी सैलरी है वो 50,000 से ग्रेटर है, तो अगर आपके पास एक भी रो है वो 50,000 से ग्रेटर सैलरी को इंडिकेट कर रही है तो उसका मतलब आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है बट कम से कम एक वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, अदरवाइज़ ये जो क्वेरी होगी वो फ्री हो जाएगी, इस टी वेरिएबल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। दैट्स वाई वी यूज़ एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर। ठीक है, नाउ एफ इज़ अ फॉर्मूला देन सो अगर मैं इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या कहता है कि पहले तो लिखने का तरीका क्या होगा, इफ़ एफ इज़ अ फॉर्मूला देन फॉर्मूले को मैं किस तरह से लिखूँगा, एफ इज़ फॉर्मूला इंडिकेटेड बाय एंक्लोज्ड इन द ब्रैकेट एंड वेरिएबल टी प्रीफिक्स्ड बाय फॉर ऑल ऑपरेटर। तो फॉर ऑल टी ऑफ एफ इज़ अ फॉर्मूला वेयर टी इज़ द टपल वेरिएबल and formula for all t f is true if the formula f evaluates to true for every tuple। यही इसमें डिफरेंस है, ध्यान रखना। आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात कर रहे हो तो वो क्या कहता है, ट्रू फॉर सम, और ये क्या कहता है, फॉर ट्रू फॉर एवरी टपल इन द यूनिवर्स असाइन टू फ्री अकरेंस ऑफ टी इन एफ, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सारे टपल के लिए तो फॉर ऑल जो रिलेशन होगा वो फॉल्स हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल और फॉर ऑल क्वांटिफायर बिकॉज एवरी टपल इन द यूनिवर्स ऑफ टपल्स मस्ट मेक एफ ट्रू टू मेक द क्वांटिफाइड फॉर्मूला ट्रू। सपोज ये अपने पास एक डेटाबेस दे रखा है जिसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे इसमें, जैसे कि आपके पास देखो इसमें 6 टेबल दे रखी है। फर्स्ट इज़ एम्प्लॉय, सेकंड इज़ डिपार्टमेंट, थर्ड इज़ डिपार्टमेंट लोकेशन, फोर्थ इज़ प्रोजेक्ट, फिफ्थ इज़ वर्क्स ऑन एंड सिक्स्थ इज़ डिपेंड्स। नाउ एम्प्लॉय के अंदर जो आपके पास मेन एट्रीब्यूट है वो आपका प्राइमरी की क्या है, एसएसएन। एसएसएन बेसिकली होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। अगर कोई भी एम्प्लॉय है, जैसे फॉरेन कंट्री के अंदर क्या होता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उसमें एक यूनिक आईडी 10 डिजिट का कोड होता है, वो एसएसएन इंडिकेट करता है। वो हर एक पब्लिक है, जैसे अपने यहाँ पे यूआईडी का आधार कार्ड नंबर होता है वैसे एसएसएन नंबर होगा, वो यूनिक होगा। ठीक है, सिमिलरली डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डी नंबर दे रखा है, डिपार्टमेंट लोकेशन के अंदर अगेन 2 टेबल का मैं कॉम्बिनेशन दे रखा है, डी नंबर एंड डी लोकेशन। प्रोजेक्ट के अंदर पी नंबर दे रखा है, वर्क्स ऑन। एम्प्लॉय ESSN का मतलब यहाँ पे होता है एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी नंबर, हियर पी नंबर एंड द आर्स। ठीक है, पी नंबर यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर को इंडिकेट कर रहा है। और लास्ट आता है डिपेंडेंट के अंदर अगेन डिपेंडेंट कौन किस पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय का डिपेंडेंसी आ जाती है। जैसे कोई एक प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो अगर टीम है तो टीम रिपोर्टिंग कौन किसको करेगा तो वो उसका डिपेंडेंट का नेम आ जाएगा और उसका रिलेशनशिप दे रखा है। क्लियर। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे अपन क्वांटिफायर को यूज़ कैसे करेंगे, एग्जाम्पल क्वेरी यूजिंग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, उसको यूज़ करने का तरीका दे रखा है। तो पहली जो क्वेरी दे रखी है वो क्या कह रही है, रिट्रीव द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु वर्क्स फॉर द रिसर्च डिपार्टमेंट। अब वापस से क्वेरी को सुन लीजिए, रिट्रीव द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हु वर्क्स फॉर द रिसर्च डिपार्टमेंट। अब अपने को एम्प्लॉय का नेम और एड्रेस रिट्रीव करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अगर मैं इसको, आप लोगों ने देखा होगा रिलेशनल अलजेब्रा की फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या कहता है, सबसे पहले तो आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, डिस्प्ले क्या क्या करवाना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। तो यहाँ पे ये देखो पाई एफ नेम, लास्ट नेम और एड्रेस, यही अपने को रिप्रेजेंट करना होता था। अब यहाँ पे अपने को सिलेक्शन क्वेरी लगानी है, तो सिलेक्शन क्वेरी क्या कहती है, सिग्मा डिपार्टमेंट नेम क्या होना चाहिए, रिसर्च। तो ये आ गया रिसर्च, कौन सी टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल में आप देखो डिपार्टमेंट कौन सा, डी नेम क्या आ गया, रिसर्च, तो यहाँ पे देखो डी नेम आ गया, ठीक है। और ये कौन सा है, ये जॉइन ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये जॉइन ऑपरेटर क्या करेगा, डी नंबर इक्वल टू डी नंबर, इसका मतलब कि आप देखो वापस एम्प्लॉय के अंदर क्या दे रखा है, डी नंबर, सबसे लास्ट कॉलम डी एन ओ, डी नंबर, और एम्प्लॉय टेबल के अंदर डी नंबर दे रखा है, और जो आपकी डिपार्टमेंट टेबल है उसके अंदर जो प्राइमरी की है वो क्या दे रखी है, डी नंबर। इसका मतलब कि एम्प्लॉय की जो टेबल है उसमें डी नंबर और डिपार्टमेंट की टेबल के अंदर डी नंबर दोनों मैच करने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने साथ में टेबल नेम लिख लिया। ये तो सिंपल आपने पढ़ा है आगे रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, जॉइन ऑपरेटर के थ्रू आप कैसे रिजल्ट को फैच करते थे, दो टेबल को कंबाइन करके। अब इसी को मैं यूजिंग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के हिसाब से जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो ये रहा मेरा इसका क्वेरी का रिजल्ट। सपोज अगेन आपने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल क्या है, टी। अब टी के साथ में मेरे को रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। तो यहाँ पे मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, टी डॉट एफ नेम, comma t dot l name and t dot address. Now again separator used by bar operator. Here table is what, employee t, ठीक है। ये सारे के सारे कौन सी टेबल से इंडिकेट हो रहे हैं, तो मेन जो टेबल होगी वो क्या है, एम्प्लॉय टेबल है। तो इस एम्प्लॉय टेबल से डायरेक्टली वो रिजल्ट आ जाएगा एम्प्लॉय टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दो टेबल को आप कंबाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास दूसरा क्या लग जाएगा, एग्जिस्टेंशियल फ्रॉम डी। तो यहाँ पे ये डी किसके लिए इंडिकेट होगा, डी होगा टेबल, डिपार्टमेंट टेबल के लिए। तो लिखने का तरीका क्या होता है, इसको अपन इसी तरह से लिखेंगे, एम्प्लॉय टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डी वेरिएबल। नाउ डिपार्टमेंट डी एंड डी नेम, ठीक है। तो एक्चुअल में जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को आप लिखोगे उसी फॉर्म के अंदर, जैसे आपने एम्प्लॉय टी लिखा वैसे कि वैसे आप डिपार्टमेंट डी लिखोगे, ठीक है। बट इसको अगर आपको उससे रिलेट करना है एम्प्लॉय टेबल से, तो यहाँ पे आपने क्लॉज लगाया एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर डी एंड ऑपरेटर के साथ उसको मैंने एसोसिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो इन दोनों टेबल का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे यहाँ पे जॉइन ऑपरेटर है, ये जॉइन ऑपरेटर यहाँ पे एंड ऑपरेटर का रोल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंड डी डॉट डी नेम इक्वल टू रिसर्च, डी डॉट डी नेम कौन सी टेबल से आ रहा है, डिपार्टमेंट टेबल से आएगा। तो यहाँ पे डी डॉट डी नेम इक्वल टू रिसर्च एंड डी डॉट डी नंबर इक्वल टू टी डॉट डी नंबर। अगेन टी किस वेरिएबल, किस टेबल से एसोसिएटेड है, वेरिएबल एम्प्लॉय टेबल से है तो डी नंबर, और डी किस से एसोसिएटेड है, डिपार्टमेंट से, तो डी डॉट डी नंबर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, नाउ only free tuple variables in a relation calculus expression should be those that appear to the left of the bar. In previous query, t is the only free variable. It is then bound successively to each tuple. If a tuple satisfies the condition specified in the query, the attribute f name, l name and address are retrieved for the each such tuple. The condition employee T and department D specify the range relation of T and D. Clear है? The condition D dot D name equal to research is a selection condition and correspond to a select
operation in the relational algebra, whereas the condition d dot d number equal to t dot d number is the join condition, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सिर्फ जो आपका t वेरिएबल है वो फ्री वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे आपने t वेरिएबल को किसी भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ में ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पे d है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे देखो आप, वो एग्जिस्टेंस ऑफ d के साथ में इंडिकेट हो रहा है। नेक्स्ट अगेन, जैसे यहाँ पे दे रखी है क्वेरी, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क्स ऑन द सम प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय डिपार्टमेंट नंबर 5। तो अगेन यहाँ पे देखो, आपको पहले तो ये चेक करना है कि कौन कौन सी टेबल हैं वो अपने को यूज़ में आनी है। तो सबसे पहले तो अपन क्वेरी की बात करते हैं। तो पहली जो टेबल आएगी मेरी, अपने को रिजल्ट प्रिंट क्या करवाना, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो अगेन मेरे पास दो ही चीज़ प्रिंट होगी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। तो एल नेम और फर्स्ट नेम को मैंने इंडिकेट किया। ये मेरा प्रिंट करवाने वाला जो एट्रीब्यूट होते हैं भाई, वो बार ऑपरेटर के आगे मैं यूज़ करूँगा, कर्ली ब्रेसिस ब्रैकेट ओपन होने के बाद। ध्यान से देखो इसको। नेक्स्ट एम्प्लॉय ई। एम्प्लॉय ई, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है, वो टेबल एम्प्लॉय को इंडिकेट कर रहा है, ई वेरिएबल। एंड जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्स वेरिएबल से। प्रोजेक्ट टेबल देखो, ये रही प्रोजेक्ट टेबल, जिसके अंदर आपके पास पी नेम, पी नंबर, पी लोकेशन और डी नम दे रखा है। तो प्रोजेक्ट को मैं एक्स से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो इसका एग्जिस्टेंस मेरे को डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे फ्री वेरिएबल कौन सा हो गया, ई। तो उसको मैंने देखो ई डॉट एल नेम और ई डॉट एफ नेम से इंडिकेट कर लिया। एंड वर्क्स ऑन, अब वर्क्स ऑन में वर्क्स ऑन टेबल दे रखी है, वर्क्स ऑन के अंदर मैंने उसको डब्ल्यू वेरिएबल से इंडिकेट कर लिया। तो ये भी तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का काम करेगा भाई। किसी भी क्वेरी के अंदर फ्री वेरिएबल एक ही होगा, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट जो प्रिंट करवाना उसके साथ एसोसिएटेड होगा। बाकी सबको अपने को टेबल को एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ में इंडिकेट करना होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू, देखो इधर एग्जिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू ये इंडिकेट हो रहा है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर दोनों टेबल को आपस में मर्ज, दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन कर लिया, जैसे प्रोजेक्ट एक्स एंड वर्क्स ऑन डब्ल्यू। एंड अब ये क्या कह रहा है, एक्स डॉट डी नम इक्वल टू 5। जैसा कि आपने क्वेरी में देखा कि कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट नंबर 5, तो प्रोजेक्ट टेबल के अंदर ही बताएगा भाई। जैसे प्रोजेक्ट टेबल के अंदर आप देखो, जैसे कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट का नंबर क्या है, प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है और कौन सा डिपार्टमेंट है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। डी नम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट है कौन से डिपार्टमेंट में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टेबल का वेरिएबल क्या आप है, एक्स। तो आपने क्या लिखा, एक्स डॉट डी नम इक्वल टू 5। एंड अब अपने को चेक करना है कि जो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो वर्क्स ऑन पे आएगा। तो एम्प्लॉय का कोड क्या हो गया, ESSN। वर्क्स ऑन टेबल के अंदर देखो ESSN, और एम्प्लॉय के अंदर उसका कोड क्या होगा, SSN। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जॉइन ऑपरेटर लगाएंगे, दो टेबल को मर्ज करना है। कौन कौन सी टेबल, एम्प्लॉय और वर्क्स ऑन। तो यहाँ पे आ गया E डॉट SSN इक्वल टू W डॉट ESSN। उल्टा बोल गया, वो सेम एक ही बात है। W डॉट ESSN इक्वल टू E डॉट SSN। एंड अब P नंबर, मतलब अपने को प्रोजेक्ट भी तो आपस में चेक करना है कि प्रोजेक्ट टेबल और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो दोनों मैच करना है। तो यहाँ पे देखो एक्स टेबल कौन सी है, प्रोजेक्ट टेबल। तो प्रोजेक्ट टेबल के अंदर प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या है, पी नंबर। तो एक्स डॉट पी नंबर इक्वल टू डब्ल्यू डॉट पी नंबर। क्लियर है। तो ये दोनों जब कंडीशन मैच करेगी, पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन तो आपकी है कि एक्स डॉट डी नम इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंट्रोल करने वाला डिपार्टमेंट की आईडी क्या होनी चाहिए, 5। एम्प्लॉय का SSN नंबर और जो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉय की आईडी मैच करनी चाहिए। अगेन यहाँ पे ये ज्वाइन लग रहा है, प्रोजेक्ट का नंबर और वर्क्स ऑन के अंदर प्रोजेक्ट का नंबर वो दोनों मैच करने चाहिए। तो यहाँ पे भी ज्वाइन ऑपरेशन लग गया, ठीक है। बाकी दो डिपेंडेंट जो मेरे वेरिएबल थे एक्स और डब्ल्यू, उसको मैंने एग्जिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, और फ्री वेरिएबल मेरा कौन सा हो गया, एम्प्लॉय, और दोनों मैंने एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करवा दिया। क्लियर है क्वेरी। नेक्स्ट अगेन ये आपके पास आता है नेक्स्ट